Good morning children, welcome to class 3 computers. Children, this is your computer book IT Planet My Bits and Bytes Computer Series 3. Children, in our previous video we were doing chapter 1, that is about computer. So children, we have till now we have completed first page of this chapter. Today we will revise that first page and then we will proceed further in the chapter. So children, our first chapter is chapter 1, that is about computers. So children, till now in class 1 and 2 we have studied many things about computer. By now children, you must be able to identify computer, you must be able to identify different types of computers, you know all the parts of computer, you know how to switch on and switch off the computer, and children, you also know working of different parts of computer as well as storage devices, and you also know you also know some of the programs, that is notepad and calculator. So children, in our previous class, in your previous class you have already studied about some programs also. So children, in this chapter once again we are going to start with what is computer. As you know children, till now you have studied many definitions of computer. For example, in class 1 you studied that computer is a smart machine, it is a magic machine, and then in class 2 you studied that computer is an electronic machine. Now today we are going to read another definition or somewhat elaborated definition of computer. Let us start. So children, in this chapter पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. एज वी नो, कंप्यूटर वर्क्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और इट runs on electricity, that is why it is known as electronic machine. By now children, you are very much familiar with this word also. आप इस word को पहले भी पढ़ चुके हैं. Then other than that children, computer takes instruction from us and gives the result after processing. This also you have studied, not as a definition, but when we were studying about working of the computer, when we studied that कि computer is man-made device, it is made by man and it is smarter than man but it is not better than man. ये man से smart होता है क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे काम करता है जो man cannot do और human being cannot do, human being नहीं कर सकता है. जैसे कि इसकी speed बहुत ज़्यादा है as compared to man, और it can remember lot of data for long duration of time, सालों तक, और या जब तक हम चाहे तब तक, जब तक हम उसे इरेज ना करें या डिलीट ना करें किसी भी स्टोरेज डिवाइस से, वो तब तक वो याद रखेगा, उसकी मेमोरी में रहता है. तो ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू रिमेंबर, ह्यूमन कैन रिमेंबर ओनली अप टू सम एक्सटेंट दे कैन रिमेंबर, और अप टिल सम ड्यूरेशन दे कैन रिमेंबर, कुछ समय तक कर सकते हैं या फिर एक लिमिट में डाटा को रिमेंबर कर सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर के मेमोरी का कोई लिमिट नहीं है, वो मिलियंस ऑफ डाटा को वो याद रख सकता है और बहुत दिनों तक याद रख सकता है. उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क होती है जिसमें हम जो भी काम करते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि it is one of the benefit of working with computer that whatever we do on the computer can be kept safely in the computer or stored safely in the computer by using internal devices और external devices also. कुछ हम कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसमें भी हम कर सकते हैं और बाहर भी के एक्सटर्नल पेन ड्राइव या CD या DVD में भी कर सकते हैं. तो here children, now in this class we are going to learn a bit bigger definition, long definition of computer. So a computer is an electronic machine that takes instruction. So why I started it is made by man children? As we know, it is not better than man. Why it is not better than man? क्योंकि unless or until we provide information to the computer, it will never be able to work. वो अपने आप काम नहीं कर सकता है जब तक कि हम उसको डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे या फिर हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे. And this process of providing instruction is called input. इसे हम इनपुट कहते हैं. जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करने का, इंस्ट्रक्शंस देने का,
जिसे हम इनपुट कहते हैं। जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं, जो भी हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन चिल्ड्रन gives result after processing. So the data given by us is being processed by the computer and then we get a result, and this result is called output. So here the data given by us is input and then the same data is processed, computer प्रोसेस करता है, CPU में उसकी प्रोसेसिंग होती है एंड देन वी गेट द रिजल्ट। जिसलिए हमने डाटा दिया था जिस काम के लिए, उस काम के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको हम रिजल्ट कहते हैं या इंफॉर्मेशन कहते हैं या आउटपुट कहते हैं। नाउ चिल्ड्रन, I had given various example also. We had discussed with this topic with various examples and you must still be remembering those examples. For example children, हमने एक जूस, how to make a juice from a juicer example लिया था, how to make a toast using toaster. The working of the toaster or the juicer is same as the कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर में हम इनपुट आउटपुट करते हैं, मतलब कंप्यूटर के काम जैसा नहीं है, लेकिन जैसे हम इनपुट आउटपुट हमको मिलता है वो चीज़ें सेम है। हम जूसर में भी ऑरेंजेस इनपुट के फॉर्म में देते हैं, देन वी गेट द जूस एज अ आउटपुट। सिमिलरली वी गिव bread, we provide bread to the computer and in return of the bread we get toast from the toaster. So this is how we can understand that. So children, so here we are going to learn about input and output also. So the complete definition is, the computer is an electronic machine. The computer is an electronic machine that takes instructions from us and gives the result after processing. So children, computer is an electronic machine because it runs on electricity and it takes data or information or instructions from us and gives the result. As I told you, it is a man-made machine and it works only when we provide instructions to them. That is why children, unless or until we provide instructions to the computer, it will not work. This is very important to give instructions to the computer. That is why we say that computer is smarter than man but not better than man. Then after getting the instruction, we get the result and this is called output. So this is the new definition of computer which you are going to learn in this class. If you are asked to write definition of computer, you will not just write computer is an electronic machine, you have to write complete definition. So children, computer works very fast. Why it is smart? Because it works very fast. It can do millions of tasks in a second. एक सेकेंड में जस्ट सोचो millions of tasks वो कर सकता है। टास्क का मतलब क्या? What do you mean by task children? काम। टास्क का मतलब होता है काम। तो वो जो कंप्यूटर है, it can do millions of tasks in a second. It can perform different day-to-day tasks like writing letter, doing calculations, making drawings, playing games or playing videos, or we can also watch movies. So children, this is all about computer. Just now we have revised definition of computer as well as working of computer. Now children, this also we have understood. This is laptop and first picture is of laptop children. You all are very much familiar with this laptop because nowadays these things have become very common in your life. इन चीज़ों से हमारी लाइफ चल रही है because of COVID children, this pandemic time, we totally depend upon these laptops, computers or mobiles, because if you want to buy something, you want to order something, you need these things. और उसके बाद अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है या फिर आपको कुछ मंगाना है या फिर आपको क्लासेस करनी है, सारी चीज़ों के लिए हम आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर पे ही डिपेंड करते हैं. नाउ चिल्ड्रन, उसके बाद हमारे पास है, नाउ चिल्ड्रन हियर we have updates. Just now I told you about the definition of input and output. We have already studied input and output, और जो हमने पढ़ा अभी definition उसमें भी हमने देखा input and output is the part of computer definition. So first part of the computer, the definition of the computer is that it is an electronic machine.
After that children, it accepts data from us to do any work. So it is accepting data is called input and giving the result is called output. So in सबको मिला करके we get a cycle children. This cycle is input, output, input, process and output. Firstly, the instructions are taken or accepted from the computer, and then these instructions are input, and these inputs are processed. After processing of the input children, we get output. So children, this is all what we studied in our previous video. Now let's start our today's topic. So children, you till now you have understood what is input and output devices. Then today we are going to read hardware and software. Children, the computer system is categorized mainly into two parts. Children, the computer system is categorized mainly into two parts. मतलब जो कंप्यूटर के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी जानते हैं, हम उसे दो कैटेगरीज में पढ़ते डिवाइड करते हैं. एंड दीज टू कैटेगरीज आर योर हार्ड ड्राइव and soft drive. These two categories are hardware और software. अब ये दो categories जिसके में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, these are हार्डवेयर और सॉफ्ट ड्राइव. हमने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में पढ़ा है चिल्ड्रन. उसी तरह से यहाँ पे हार्डवेयर. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्डवेयर. सो हार्डवेयर चिल्ड्रन, ऑल द फिजिकल पार्ट्स अटैच टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. जितने भी फिजिकल पार्ट्स आपके कंप्यूटर में उससे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम देख सकते हैं, फिजिकल यानी वो सारे पार्ट्स जिसको हम देख सकते हैं, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर. कंप्यूटर के साथ जितने भी पार्ट अटैच है चिल्ड्रन और जिनको हम देख सकते हैं, क्योंकि दे आर अटैच टू द कंप्यूटर, वी कैन क्लियरली सी देम, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, mouse, keyboard, monitor, printer, speaker, etc. are all examples of hardware. अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में जो भी पढ़ा, हमने उसे देख करके समझा या पढ़ा, बट हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया था. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न और अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन टू वेज. पहला है हार्डवेयर. हार्डवेयर वो सारी चीज़ें, कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू करके फील कर सकते हैं. तो ऑल द फिजिकल पार्ट, छू करके फील करने का मतलब ही है वो सारे फिजिकल पार्ट्स अटैच टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. जितने भी फिजिकल पार्ट है जो हमको दिखाई देते हैं और जिसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल पार्ट कहते हैं. एंड दीज पार्ट्स आर अटैच टू द कंप्यूटर. ये सारे पार्ट्स कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो चिल्ड्रन, हियर इज अ माउस. दिस स्मॉल mouse like structure is called mouse, and then we have printer, then we have keyboard, CPU and speaker. So आप इन सभी पार्ट्स को, कंप्यूटर को, पार्ट्स को छू करके देख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फिजिकल पार्ट कहते हैं. दैट इज वाई वी कॉल इट एज फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर इज अ physical part of the computer which is attached to the computer. या आप बोल सकते हैं all the physical parts of the computer which are attached to the computer, या all the physical parts of the parts attached to the computer are called hardware. और these parts can be touched and felt as well as can be seen. हम उससे टच और फील करके हम उसे टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. So children, these are, as you can see in the picture, these are monitor, keyboard, printer, mouse, CPU and speaker, about which you have already studied in the previous class and you very well know. वो सारे parts of the computer जिसको मिला करके हम computer system बनाते हैं और वो एक साथ काम करते हैं, एक system में वो काम करते हैं. और इन सारे parts को हम आराम से छू करके भी महसूस करते हैं और कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. सो टच और फील कर सकते हैं, इन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं. वी कॉल इट एज हार्डवेयर. तो ऑल द फिजिकल पार्ट्स
attached to the computer is called hardware. You can touch or feel the hardware. Mouse, keyboard, monitor, printer, speaker, etc. are all examples of hardware. So children, this is hardware. Now second is software. Same as software children, this is also part of computer. For example children, software is a part of instruction that tells a computer how to do a particular task. Children, I keep on telling you that कि computer cannot perform any work itself. जो computer होता है किसी भी काम को अपने आप नहीं कर सकता until or unless you provide set of instructions to perform any work. इसीलिए हमने प्रोग्रामिंग कर करके छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए हैं और उसके नाम दे करके हमने कंप्यूटर में फीड किया हुआ। जब आप कंप्यूटर खोलते हो, विंडो एसेसरीज़ खोलते हो, तो उसमें आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि MS विंडो हो गया, MS पेंट हो गया, MS वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया. सो चिल्ड्रन दीज आर द प्रोग्राम्स विच आर फेड इनटू द कंप्यूटर. हम इसे कंप्यूटर में डालते हैं एंड दीज आर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिन्हें पर्टिकुलर नाम दिया गया है और जब हम उसे खोलते हैं और उस पर काम करते हैं तो ऑल द वर्क विच इज़ डन थ्रू दीज सॉफ्टवेयर, दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो जो चीज़ें कंप्यूटर में फीड की गई हैं उसके अनुसार वो. सो चिल्ड्रन, सेकेंड पार्ट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. अभी तक हम पूरे टाइम दो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे, एक instructions and the other one is information obtained from the computer. So the children, whatever we do on the computer, it is fed into the computer in the form of software. जैसे कि जब हम पेंट प्रोग्राम कर रहे थे उसको हम ऑपरेट करने के लिए हम उसे ऑपरेट करना सीख रहे हैं और उसके अंदर जो भी हम उसमें जो भी काम करते हैं, जो भी फंक्शन करते हैं, ऑल दीज फंक्शंस आर फेड इनटू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर नेम्ड एज MS पेंट. तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय अस. We have made a program called MS Paint and this it is one of the software. इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. इसी तरह हमने अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं. इंस्ट्रक्शन को एक साथ ग्रुप करके अलग अलग नाम दिया गया है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. इसके थ्रू हम अलग अलग फंक्शंस कंप्यूटर से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि MS विंडो में हमारे पास MS पेंट है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, नोटपैड है, कैलकुलेटर है. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं. सिमिलरली चिल्ड्रन, अब नाउ ये दो चीज़ें हो गई आपकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आई होप यू ऑल हैव मस्ट हैव अंडरस्टूड. सो फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड एंड फेल्ट, which you can touch and feel are called hardware. And software children, software are the programs which are fed into the computer to perform any task. जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर्स नीड टू बी गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अनटिल और अनलेस यू गिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर वो काम नहीं करता. तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हम सॉफ्टवेयर एक डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उनको नाम देते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर को अलग अलग नाम देते हैं, उनका अलग अलग पर्पस होता है और वो अलग अलग काम करते हैं. अगर आप MS वर्ड की बात करें तो उसमें वी कैन राइट, टेक्स्ट एडिटर है, उसमें लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. अगर हम MS पावर पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं. एक्सेल की बात करें तो वहाँ पे भी हम एक्सेल शीट्स बनाते हैं. और उसके बाद अगर हम MS पेंट की बात करें तो MS पेंट पे हम ड्राइंग और कलरिंग करते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट नोटपैड, व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट नोटपैड चिल्ड्रन, बिकॉज यू आर फेमिलियर विथ नोटपैड. आप नोटपैड से बहुत फेमिलियर हो, आप जानते हो नोटपैड को, आप कर चुके हैं नोटपैड को. तो वो भी एक प्रोग्राम है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस फीड किए हुए हैं कि क्या करने से क्या होगा और फिर हम उसको यूज़ करते हैं. तो ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर. सिमिलरली चिल्ड्रन, कैलकुलेटर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम कैलकुलेशंस करते हैं. और नोटपैड पे भी हम वो भी एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है, हम उसमें लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर. ये सारे सॉफ्टवेयर हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. अब सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, फील, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस उसका कुछ भी नहीं है. फिजिकली हम उसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं. वो कंप्यूटर में प्रोग्राम के फॉर्म में ही हम उसे देख सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट पार्ट इज वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर वर्क्स.
how a computer works. A computer is a machine that works very fast. Till now we have studied, since last 2 classes we have been studying that a computer is a machine that works very fast. जो कंप्यूटर होता है वो एक तरह का मशीन है जो बहुत जल्दी फास्ट काम करता है. It cannot work on its own, और वो खुद से काम नहीं कर सकता. As I have told you, it is a machine and it cannot perform any work itself. Some data has to be fed into it. जब तक हम कुछ डाटा फीड नहीं करेंगे या कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, it will not be able to perform any work. वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा. It will process that data and as a result gives relevant information. मतलब हमें जिस तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उस तरह की वो इंफॉर्मेशन देता है. उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव व्हाट इज़ दिस डाटा. तो अभी हमने क्या पढ़ा? अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स वेरी फास्ट बट इट कैनॉट वर्क ऑन इट्स ओन. ये खुद से काम नहीं करती. अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन एंड इट कैनॉट वर्क ऑन इट्स ओन. दैट इज़ वाई वी नीड टू गिव सम डाटा या इंस्ट्रक्शन हमें देना है. अब जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो अकॉर्डिंगली इट वर्क्स एंड गिव्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस. सो दिस इज कंप्लीट वर्किंग ऑफ अ computer. Now let us understand children what is data. Even though I have told you many times about the data, I have told you many times about the data that the set of instructions given to the computer or the information given to the computer to perform any work is called data. हम इसे raw material भी कहते हैं. हम जो डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसे हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं. जब मैंने आपको इनपुट के बारे में पढ़ाया था, प्रोसेसिंग आउटपुट के बारे में एग्जांपल्स के साथ आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस क्लास चिल्ड्रन. आई हैड टोल्ड दैट द ऑरेंजेस which are being put into the machine, a mixer grinder is a raw material. वो एक तरह का रॉ मटेरियल है जिसको यूज़ करके मिक्सर ग्राइंडर जूसर बनाता है. और अगर हमको कोई कैलकुलेशन करना है तो द नंबर्स विच वी प्रोवाइड और द साइन विच वी प्रोवाइड आर रॉ मटेरियल. इफ़ यू वांट टू मेक प्रिपेयर अ सैंडविच, द ब्रेड विच यू गिव पुट इनटू द टोस्टर इज़ अ रॉ मटेरियल या डाटा. इसे हम डाटा या रॉ मटेरियल कहते हैं. सो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ raw unorganized facts and figures that includes words, numbers, sounds and images. जो डाटा होता है जो वो कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल है और ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है. जैसे कि हमको 2+4 करना है तो हम कभी भी 2+4 टाइप नहीं करते हैं. हम करते हैं 2, प्लस, 4 या फिर हम कर सकते हैं प्लस, 2, 4. उसके बाद ऑर्गेनाइज करना और परफॉर्म करना किसका काम है? वो कंप्यूटर का काम है. तो आगे का काम, डाटा देने के बाद आगे का काम करना ये कंप्यूटर का काम है, क्योंकि सब कुछ हम कर देंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा. उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है हमें 1-2 बच्चे की तो करनी ही नहीं है. हमें जैसे कि हम यहाँ पे हमें रिजल्ट बनाना है, ठीक है. अब रिज़ल्ट बनाने के लिए अगर किसी बच्चे का रिज़ल्ट बनाना है तो हम क्लास देते हैं, सेक्शन देते हैं, रोल नंबर देते हैं, देन वी गिव मार्क्स देते हैं या फिर हम अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स देते हैं और उसके बाद फिर हम उसका रिज़ल्ट प्रिपेयर होता है. तो एक ही बच्चे का रिज़ल्ट एक बार में तो प्रिपेयर नहीं होता, तो हम तो बहुत सारे बच्चों का प्रिपेयर करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और इन द फॉर्म ऑफ डाटा, एंड दीज डाटा आर processed accordingly as per the need and gives us relevant result or the information. So this is one of the example of if you talk about the data children, it is one of the best example that for preparing a result you need to give name, class, section, marks of different subjects, फिर तो वो परसेंटेज निकालेगा और रिजल्ट बनाएगा. सो दिस इज़ व्हाट वी गिव इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और द डाटा. आफ्टर दैट चिल्ड्रन we have information. What is information children? Information means the meaningful and the organized form of data
is called information. अब हमने अनऑर्गेनाइज्ड डाटा दिया था कंप्यूटर को, उसने ऑर्गेनाइज करके और प्रोसेस करके हमको उसे मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है, एंड दीज इंफॉर्मेशंस आर called the result or the final result or the relevant data which we need from the computer, which we want from the computer. So this is called information. जो काम होने के बाद हमको मिला उसे हम information कहेंगे. जैसे कि अभी हमने डाटा क्या दिया था, डेटा में हमने अभी दिया था क्लास 3 A, रोल नंबर 8, ₹5000, राहुल एट्सेट्रा. अब ये तो हमने ऐसे ही एट रेंडम दे दिया या फिर अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दे दिया. नाउ द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो ऑर्गेनाइज्ड है और मीनिंगफुल है. राहुल इज़ इन क्लास 3. पूरी जो हमें डिटेल राहुल की मिली वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है. राहुल इज़ इन क्लास 3. ही इज़ इन सेक्शन A. राहुल्स रोल नंबर इज़ 8. हिज मंथली फी इज़ 5000. सो चिल्ड्रन, हमने जो डाटा दिया था वो स्क्रम्बल्ड फॉर्म में दिया था. अब उसे एकदम ऑर्गेनाइज्ड करके प्रॉपरली अरेंज करके हमको कंप्यूटर ने दिया है. सो दिस डाटा which we get in meaningful or organized form is called information. इसे हम information कहते हैं. So children, today we studied about software, hardware, data and information. Let us revise these topics and then. So children, here you can see hardware. Hardware means children, the computer system is categorized into two parts. जो कंप्यूटर का वर्किंग होता है, the working of a computer is organized into two parts. These two parts are hardware and the software. Children, the physical part of the computer which you can touch and feel is called hardware. जो physical part होता है कंप्यूटर का, जिसे हम देख सकते हैं, छू के महसूस करते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं. सो चिल्ड्रन, द डिफरेंट फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, स्पीकर. इन सब को हम छू करके महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. इनको हम हार्डवेयर कहते हैं. वी कॉल इट एज हार्डवेयर. एंड just after this we have children, just after this we have software. This is another part of the computer. For example children, software is a set of instructions that tell a computer how to do particular work. So for doing a particular work we give set of instructions to the computer, and these instructions are called software. As I told you, these instructions are present in the computer in the form of different प्रोग्राम्स. ये डिफरेंट प्रोग्राम के फॉर्म में इस कंप्यूटर में हमें मिलते हैं, जिसे हम यूज़ करके अलग अलग कंप्यूटर से काम करते हैं. देन वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर चिल्ड्रन, एज आई हैव टोल्ड यू, इन द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. अब बिना इंस्ट्रक्शंस के तो कंप्यूटर काम कर नहीं पाएगा, तो हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस इज कॉल्ड डेटा. ये हो गया आपका डेटा. यूजिंग दीज डेटा इट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस. ये अलग अलग काम करता है. और दीज डाटाज आर कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल. ये डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल होता है, जिसको यूज़ करके, और जो कि चिल्ड्रन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है. दीज आर द फैक्ट्स और फिगर्स विच आर found in unorganized form. It can be numbers, words, sounds and images. अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, see this example children, here a detail of a child called Rahul is given here. तो सबसे पहले हमें है क्लास 3, A, रोल नंबर 8, ₹5000 and Rahul etc. तो इन दिस मैनर चिल्ड्रन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. तो जब हमें इसका रिजल्ट मिलता है आफ्टर गिविंग दिस इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल टू द कंप्यूटर, वी गेट द रिजल्ट और वी गेट द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मीन्स द मीनिंगफुल organized form of data is called information. Is Rahul is in class 3. He is in section A. Rahul's roll number is 8. His monthly fees is ₹5000.
1000. So children, अब इस डाटा को पढ़ के हमको सब कुछ समझ में आ रहा है जो भी हमको जानना था. So that is why the meaning of the meaningful and organized form of data is called information. So हमें सारे processing के बाद जो result मिलता है उसको हम information कहते हैं. Now you must have understood the difference between data and information. I hope children you have understood the meaning of data and information. So children, with this I conclude today's class. We will meet once again with other topics. So children, till then, thank you.